Cool. Let's get started. Thank you so much, Nidhi, to be in my channel. It's called Mindfulness with Manish. The goal for this channel and the vision is to connect with people who are into the part of spirituality, yoga, meditation, all around that field. Because I feel that I connect with those people most, and that's the thing which is missing in these times, because people are into stress and depression, and maybe this channel we can talk about this, people will hear and maybe they will see a benefit and they can connect with us with more. So that's the goal. Thank you so much for being part of it. So I know you. Let's talk about little bit about your background. I know you are currently a product manager in Google, and I know you like past 10 years or maybe 15 years, long time back. So why not we start like your journey, how you came to US, a little bit about yourself, what is your interest, and then that's where we start. Yeah. Sure. I came to US 2008 में to do my masters. I've been here for a while now. 15 साल हो गए. 15 साल हो गए. Exactly, yeah. 15 16 2000. हाँ 16 हो गए, 14 24 हो गए. It was a tough time. मतलब क्योंकि अकेले आई, कोई नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं. I had no connection with anybody. I came all by myself. तो बहुत सारी चीज़ें थी. एक तो एनवायरनमेंट अलग, ऊपर से हमेशा दिमाग में ये चलता था कि $1 का, एट दैट टाइम इट वाज 45-50 रुपीस का $1. आपके टाइम 45-50 था? हाँ. गॉट इट. मेरे टाइम 55 के आसपास था. और मेरे को भी अभी तक याद है जब मैं आया था, हम वहाँ जाते थे, मतलब जैसे ग्रोसरी स्टोर 7-Eleven, वो डोरिटोस का पैकेट लेते थे और देखते थे यार ये तो $3 का है. $3 into 55 which is like 170 रुपीज. नहीं लेना है, नहीं लेना है. एग्जैक्टली. तो दिमाग में पैसों का कैलकुलेशन चलता रहता था. I had come here for masters to USC. USC was a very expensive program. So I used to think I'm putting a lot of burden, financial burden on my parents. तो एक तो पैसे का स्ट्रेस होता था कि भाई जॉब जल्दी से लग जाए. I because of that I ended up, जो 2 साल का कोर्स था, I ended up doing it in 16 months. I said instead of doing job on campus and earning minimum pay, at that time it was $8 $10. अभी तो 15 हो गया. So at that time I used to think, if I did a math on back of the envelope sort of calculation, if I do this versus I do this degree faster, how would that be? Right. I decided I'll do the degree faster and earn by getting a full-time job. So finance was one thing. Being alone in this country was another. That was the time when you didn't have phone so well connected, like WhatsApp wasn't there. So we used to have calling cards, so calling India. Yeah, I remember we used to buy calling cards to India. इतना प्लान देना पड़ेगा, इतने मिनट्स मिलते हैं, वो सब. Right. WhatsApp उस टाइम नहीं था. WhatsApp नहीं था. Facebook had just started. So it was, in all that way, it was very hard. Right. And जैसे तुम बोल रहे हो ना, it reminds me, हम लोग राल्फ करके एक स्टोर होता था यूएससी के पास, वहाँ पे जाके ऐसे प्लास्टिक के बैग में बहुत सारा सामान लेके आते थे, क्योंकि बार बार जाने का समय नहीं होता था. We are students, yeah. राइट. और हमको लॉन्ड्रीलैंड में जाके कपड़े धोने होते थे सूटकेस में. तो आप रहते कहाँ थे बेसिकली? इट वाज अ डॉर्म रूम? ना यूएससी के डॉर्म वी कुड नॉट अफोर्ड. अंदर डॉर्म्स होते थे यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ नहीं, बाहर. हाँ, फॉर मास्टर्स डॉर्म्स वर नॉट देयर. दोज वर फॉर अंडरग्रेड. एंड इवन if they were available for undergrad, as in for masters, they were very expensive. We couldn't afford them. So ऐसे ही सब चलता है. I had bought a small cycle, couldn't afford a big one. And बहुत बार ऐसे होता था कि if I don't cook, I don't eat. Right. Because बाहर जाके कौन, how can you मेरे को भी तक याद है, मैं न्यूयॉर्क में था, तो न्यूयॉर्क में हर संडे को बस चलती थी फ्री. S60 नाम था. वो बस बाकी दिनों में पेड होती थी. $2.5 लगते थे उसमें. Right. और उसमें फ्री होती थी संडे स्टूडेंट्स के लिए. स्टूडेंट आईडी दिखाओ. करेक्ट. एंड देन जाते थे हम सूटकेस लेके. और अंग्रेज समझते थे कि मतलब ये लोग सूटकेस लेके कहाँ से आ गए. हम जाते थे कॉस्को, इंडियन स्टोर, भर के सामान लेके आते थे. और वो सामान होता था 1 महीने का. ठीक है. और दिन वापस आते थे और सारे यही करते थे बेसिकली. पॉलीथिन के पैसे बचते थे. ठीक है. और सारा कुछ बल्क में आता था. हम लोग भी ऐसे बहुत, इट वाज टफ. या आई नो. सो आपका यूएससी का टाइम गया, उसके बाद यू गॉट योर फर्स्ट जॉब. या. Right? Yeah, I got my internship while I was
in my last semester, and then I was able to luckily convert into a full-time job because that was peak of recession. When I graduated, many people had to go back to India. अच्छा 2008 की बात कर रहे हो आप? 2000, I graduated in 2009 December, but recession was at its peak. peak. तो उस समय तो लोग विश्वास भी नहीं करेंगे कि जो कोटा होता है H1B का वो फिल भी नहीं होता था. अच्छा, क्योंकि लोगों के जॉब ही नहीं थे. सो ऐसा होता था कि कोटा opens I think in August or something. So even if you apply 6 months, 8 months later, तो भी 20-20 हज़ार, 7-7 हज़ार. और अभी ऐसा हो गया कि मतलब लोगों के लग ही नहीं रहे हैं. अभी लकी ड्रॉ होते हैं. बट मेरे को लग रहा था अभी रिसेशन चल रहा है 2024 में. बट फिर भी ऐसी हालत नहीं है जैसा तब हुआ था. अच्छा, तब तो सबकी नौकरी निकल गई. हाँ, तब बहुत सारी चीज़ें हुई थी. व्हेन वी वर इन कॉलेज तब 26/11 हुआ था मुंबई में. माइकल जैक्सन हैड डाइड. You know, many, and Obama had won, and of course the real estate का जो market था वो भी crash हुआ था. काफी वर्ल्ड इवेंट्स हो रहे थे basically. काफी सारे. Makes sense. तो आप you luckily was able to convert your internship. Yeah. तो आपकी पहली जॉब कहाँ थी? It was a company called Traffic Marketplace, and I was doing a job in. I was managing that whole data center. Achha. So they had a lot of traffic coming through their it's like e-commerce. Yeah, they had sort of e-commerce, a little, I would say, a little shady business. Shady. But it was sort of fun. मतलब ऑनलाइन में वो कुछ shady वेडी बेचते थे, ऐसा था? Okay. ऐसा था कि जैसे समझो NFL के मैचेस हो रहे हैं, राइट? सो पीपल विल टाइप NFL रिलेटेड स्टफ और व्हाटएवर, राइट? जो भी अभी चल रहा है. तो आपने अगर गलत टाइप कर दिया तो व्हाट आर रिलेटेड वेबसाइट्स, सो दे यूज्ड टू बाय दोस डोमेन नेम्स एंड पुट एड्स देयर. That's why it was called Traffic Marketplace because. तो बाय डोमेन्स मतलब जहाँ पे अभी वेबसाइट बनी नहीं उन डोमेन्स में. नहीं बना के they used to put ads related to. बना के वेबसाइट भी बना देते हैं. वेबसाइट कैसे बनाते थे? बना लेते थे temporary. हाँ, they used to buy. हाँ, they used to buy those domains. So समझो NFL, right? Now people will search NFL instead of putting NFL, it would be NNFL, right? So NNFL website they will buy the domain, and in that domain website all they'll put is ads related to matches and stuff like that. उनका ट्रैफिक आता था. उनको ऐड दिखाते थे. हाँ. उससे रेवेन्यू आता था. We used to put the ads on that and charge for that and impression pay, clicks pay and all of that. You know the company. Interesting. क्या करते हैं ना लोग? Connexus करके कंपनी थी, उसके अंदर ट्रैफिक मार्केटप्लेस था. Then it got bought. A lot of different things, you know. And then after that, basically, I went to Clustrix. Clustrix was a scale-up database. I don't know if you know 1FS, right? 1FS, yes. Right. So the same guy who started that company, who had started Isilon, Isilon had something called 1FS. So on the same premise, he started. That was for file system. This was for databases. I see. So it was a Y Combinator backed company. That is where I would say I learned a lot. Of course, I learned a lot in the first company. I had very good mentor there. But it was really fun to see how a startup grows. We had Make My Trip as one of our customers. There were some Japanese customer, and essentially that was the place where me becoming a product manager sort of started. That journey started. Without me knowing, of course, at that point that this is what that is, but I was pitching ideas without knowing that is what the job entails. So Clustrix is the name of the company? Clustrix, because it's a cluster of database. Databases, yeah. Now they are acquired by MariaDB recently, like 5 years. And after that? Dell. That's as an EMC data domain. That's where acquired by Dell. Yeah. That's where we met basically. Yes. Yeah, that sounds good. So उसके बाद तो basically Google. Yes. Right. And Dell में आप सबसे ज़्यादा रुके होंगे, I think, right? नहीं, Google. अच्छा, Google में, अच्छा. 5 years. 5 years. और Dell में उससे कम? Less, I think. Less than that. It was
Yeah, I think it was less. या आई नो यू फ्रॉम द डेल डेज. वहाँ पे अपना मेरे को लगता था वर्क लाइफ बैलेंस बहुत सही था Oh, too कंपेयर टू अभी. too chilled. पता नहीं क्यों. इट वाज माई फर्स्ट कंपनी. Yeah. तो मेरे को लगता है एज अ जूनियर पर्सन काम इतना नहीं होता. बट आई डोंट नो व्हाट इज इट फॉर द सीनियर गाइज. जूनियर में क्या होता है कि बेसिकली यू कम फ्रॉम द स्कूल Yeah. एंड डायरेक्टली बेसिकली यू आर गिवन स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट. बट क्या होता था 10 बजे जाओ, 4 बजे ख़त्म हो जाता खाना, मतलब काम खत्म हो जाता. फिर बीच में 1-2 घंटे का गैप भी ले ले तो वॉकिंग पे चले जाओ, स्विमिंग करने चले जाओ, खाना खाने चले जाओ. फिर शाम को एक्टिविटीज़ हो रही हैं ऑफिस की तरफ से, डिनर हो गया, लंच हो गया, कितना कुछ होता था. Huh. I know. Initial jobs, depending on, कि क्या है, फर्क पड़ता है. या अब पता नहीं लोग जो सीनियर हैं, पता नहीं वहाँ पे अभी भी यही होता होगा कल्चर. आई डोंट नो. I मतलब know. क्योंकि अब तो मैंने काफ़ी कंपनी चेंज कर ली. मैं स्टार्टअप में भी गया हूँ. स्टार्टअप में बहुत हेक्टिक होता है. स्टार्टअप में तो बहुत ज़्यादा है. सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, वीकेंड में भी काम करना पड़ता है. और बड़ी कंपनियों में डिपेंड्स. अभी तो कोविड टाइम गया था तो सबसे काम लिया कंपनियों ने. आई थिंक भर भर के सबने काम किया क्योंकि और कहीं जाने का टाइम ही नहीं था. Right. बट अभी थोड़ा चेंज हो गया. वी आर हाइब्रिड काइंड ऑफ थिंग, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक एज इन विच एनवायरनमेंट डू यू लाइक द बेस्ट, हाइब्रिड वर्सेस Hybrid. हाइब्रिड? 100%. What about just working from home? Actually, I've been working from home, so I would prefer that also. But sometimes once in a while, when I say hybrid meaning I go to office when I want to, because many a times the time gets spent, especially in Bay Area, road में, traffic में, Right. अटके पड़े रहते हैं. So उससे तो better है that you work from home, Work you from can home. use that commute time, and Right. you have peace of mind. ना सड़क में ट्रैफिक में अटके. बट मैं सुना गूगल की बसें भी चलती हैं वहाँ पे, उस पर भी काम कर सकते हो आप गूगल की बसों में. ऐसा भी होता है? हाँ, but you are out of the house at certain time. 7 o'clock, 6:40, 6:50 bus comes here. अच्छा, And by the बहुत time जल्दी आ जाती है. हाँ, and by the time you're home again, it's close to 14 hours. गॉट इट. ओके. 10 or at least 12 hours. So, गॉट इट. चलो बढ़िया है. वी विश यू लक फॉर द जर्नी, द गूगल जर्नी एंड ऑल. थोड़ा बात करते हैं फैमिली से रिलेटेड. Sure. आई नो सुभाशीष. Yeah. सेम जैसे आपसे मैं मिला हूँ. ही इज़ माई मेंटर ऑल्सो. यू हैव 2 ब्यूटीफुल किड्स. तो बेसिकली फैमिली ऑफ 4 ओवरऑल. Yes. तो कैसा लगता है यहाँ पे एरिया में रह के? लेट्स टॉक अबाउट दैट. लाइक मे बी नॉट आइसोलेटेड बट फार अवे फ्रॉम इंडिया. Yeah. Families, everyone is in India, but how do you like manage that family bonding while staying away? How do you keep grounded to the roots? How you keep humble and like all of that qualities? Like, can you talk a little bit about that? It's a pretty loaded question, I know, and बहुत बड़ा है. many of them. So I'll try and answer as many as I can. Otherwise, if I miss, please ask again. So I've been very blessed कि मम्मी पापा आते रहते हैं. आ जाते हैं. मम्मी आती है तो कई बार 6 महीने रह के जाती हैं. पापा साल में 1 बार 2 बार आ जाते हैं. So that's good. So blessed that even my चाची वो भी आ जाते हैं. चाचियाँ भी आ जाती हैं. अच्छा. तो उसके वजह से जो बॉन्डिंग होती है, बच्चे ना शुरू में ऐसा बोलते हैं कि फर्स्ट 7 ईयर में उनका जो कोर है दैट गेट्स वो डेवलप बिल्ट. होता है. हाँ. तो उस समय पे हाँ शुरुआत के 7 years बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे के. तो उसमें आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए मोस्ट बच्चे के साथ. हाँ, मतलब अब आई डोंट नो फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस. आई कैन नॉट क्लियरली रिमेंबर कि जो मेरे को बचपन में मम्मी पापा ने एग्जैक्टली क्या बोला था टिल द एज आई वाज 7. बट ऐसा बोलते हैं कि वॉट यू हियर इन फर्स्ट 7 years बिकम्स योर कोर रिस्पॉन्स. जो आपका माइंड मन में जो बोलता है ना कि ये आपसे होगा या नहीं होगा, जो सेल्फ डाउट होते हैं, या कोई लोग बोलते हैं यार करके देखते हैं, ऑल ऑफ दैट in a way comes from that subconscious programming which happens in first 7 years. That तो is आप जब 25 साल 30 साल के होते हो, the courage that you have, yes, the confidence that you have, yes, builds up when you are from first to 7th. yeah. जो inner voice होती है ना हमारी, in a way that gets, I'm not saying कि उसके बाद कुछ हो ही नहीं सकता, हो सकता है, doom हो कुछ भी गया, नहीं हो ऐसा सकता. नहीं है, ऐसा नहीं है. But in many ways that becomes the inner voice. Then you have to work. If if that doesn't happen, then you have to work a little bit harder. It's not like you can never overcome, but that becomes your core voice. So I've been blessed, like I said. So they all come. एक दूसरा, I'm the only child. तो मम्मी पापा के
लिए ना मेरे पास समय है. And they are more like friends to me. So even now I talk to my mom twice a day, many times, 3 times, 4 times a day. We do a video call. And it's not like we have to talk about anything. She can be on call, I can be on call, and we're doing something random. Sometimes I tell her, माँ मुझे ये आधे घंटे का काम है, प्लीज़ जोशिता जो मेरी बड़ी बेटी है आप उसको हैंडल करो. So she'll do that from India. वो वीडियो कॉल पे होती है? वीडियो कॉल पे होती है और वो मम्मी उसको कुछ बोलेंगी कि तुम ना जाओ ये बुक लेके आओ, या फिर चलो मैं तुमको एक कहानी सुनाती हूँ, या फिर you know things of that, something or the other. They'll talk about something, so I can do whatever I want and half an hour is just taken care of. So that bond is there, number 1. 2, from last year we've started कि बेटी जो है वो मेरे पेरेंट्स के साथ अकेले ट्रैवल करे. So she travels with them. अच्छा, ये क्यों है अकेले? क्योंकि हम जॉब करते हैं, सो कई बार ऐसा होता है when मम्मी पापा आर गोइंग ऑन अ ट्रिप वी कैन नॉट गो, बट शी कैन गो. बट योर मॉम डैड लिव्स इन इंडिया. दे लिव इन इंडिया. तो अगर वो कहीं जा रहे हैं तो वो इंडिया के आसपास ही जाएंगे ना? हाँ, तो समझो मम्मी यहाँ पर है, तो अच्छा, मम्मी और वो चले जाके फिर वो वापस आ, फिर आप ले आते हो ऐसा कुछ? हम ले आए, वो आ जाए. पिछले साल मैं और शुभाशीष यूरोप गए थे, तो वो घर पे यहाँ पे थी, मम्मी पापा के साथ थी मेरी बेटी बड़ी वाली, तब छोटी पैदा नहीं हुई थी. तो ऐसे क्या होता है, दे कैन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद ईच अदर. प्लस एक जो बात मैं अभी तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोली नहीं, कि उसकी हिंदी बहुत अच्छी है. यू नो, तो आपने उसको ग्राउंडेड रखा है अपने कल्चर से? आई डोंट नो इफ द वर्ड इज ग्राउंडेड. आई हैव डन व्हाट आई न्यू. हाँ, लोगों को नहीं रखते ना, मतलब मैंने जो देखा है, जो देसी लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को बस इंग्लिश ही सिखाते हैं. It's a funny thing. So when I brought her home, she was 5-pound little chooha. When I looked at her, मैं उसको ये बोल ही नहीं पाई, Hi, how are you? It did not, the English language did not come very natural to me. जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम, मेरे को इंग्लिश अच्छी नहीं आती, मेरे को हिंदी अच्छी आती है. हाँ, मतलब बच्चे से मैं उसको कैसे बोलूँ क्यों रो रही है. हाँ, तो हमने हिंदी में बात करी. हाँ, so I started. You express your emotions in Hindi. In Hindi, and even when she was 10 days old, all of us used to speak to her कि हमेशा आ रहे हैं हम, 2 मिनट में आ रहे हैं. हाँ. Even when she couldn't understand, we used to talk to her कि 2 मिनट में आ रहे हैं, अभी आए, मैं पानी पी रही हूँ. That way उसने ना हिंदी लैंग्वेज लर्न कर ली. ऑफ कोर्स इंग्लिश तो ईजी है. पेयर प्रेशर के चक्कर में शायद लोग इंग्लिश पे ज़्यादा जोर देते हैं. बाहर तो इंग्लिश ही चलती है. बट वो तो पिक कर लेंगे. हाँ, स्कूल में कहीं पे भी वो तो अपने आप ही पिक कर लेंगे. दैट इज़ ट्रू. मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अपनी एक भाषा जो है वो सिखानी चाहिए, चाहे कोई भी भाषा हो. मतलब नॉर्मली मदर टंग ही होती है नॉर्मली, बट हाँ, एक से ज़्यादा हो गई तो बढ़िया है. और यही टाइम होता है बच्चों को लर्निंग का, जिसमें वो लर्न एब्जॉर्ब कर सकते हैं कुछ भी. और अभी मेरा गिटार सीखने का मन है, बट बहुत मुश्किल है मेरे लिए. लैंग्वेज सीखना बहुत मुश्किल, बट बच्चे क्विक होते हैं. बच्चे बहुत जल्दी, और उनको तो बोलते हैं जो मल्टीलिंगुअल होते हैं, व्हेन यू आर मल्टीलिंगुअल योर ब्रेन एक्चुअली डेवलप्स डिफरेंटली. तो उसमें भी बहुत खैर मैंने इतना कुछ सोचा नहीं था. Whatever came naturally. जो मल्टीलिंगुअल होते हैं उनका ब्रेन ज़्यादा डेवलप होता है. और मेरे को जो लोग मिले जिनको 5 से ज़्यादा लैंग्वेज आती है ना, वो बहुत सही पर्सपेक्टिव होता है उनके लाइफ की तरफ. और बहुत लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं वो, मतलब बेफजूल में. और उनको बिना ट्रांसलेटर की मतलब बात करनी आती है. आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज, नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब अगर वो 2 लैंग्वेज आती है तो यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड बेसिकली. इंग्लिश एंड स्पेनिश. हाँ, यू कैन बी राजा, यू कैन गो एनीवेयर. बेटी अभी स्पेनिश, तुमको भी आती है स्पेनिश? वो थोड़ी बहुत आती है, बट वो भी सीख रही है. काम चला हुआ है मेरे लिए तो. बट ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज लाइक यहाँ पे बे एरिया में या फिर कहीं पे भी आजकल एवरीवन इज वर्किंग. मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं और बच्चों को डे केयर में डाल देते हैं. हाँ, ठीक है. और डे केयर होते हैं जहाँ पे मतलब बेसिकली दूसरी जो आंटियाँ होती हैं वो सिखाती हैं बच्चों को मतलब खेलना मिलना. शाम को पिक कर लेते हैं. तो बेसिकली द प्राइम एज विच यू मेंशन 1 to 7 दे स्पेंड समवेयर एल्स इंस्टेड ऑफ मॉम एंड डैड. आई नो इट देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग. उनका गोल अलग है. उनका गोल है कि फाइनेंशियली स्टेबल घर लेना है. होता है यार, कई बार ना वीजा रिस्ट्रेंट्स होते हैं, यू कैन नॉट लीव योर जॉब. तो हर कोई अपनी जगह ठीक है, बट वी शुड आल्सो थिंक अबाउट कि व्हाट इज बेस्ट. द बेस्ट स्टेट, द गोल इज व्हाट. यू टेल मी, लाइक व्हाट इज द थिंग व्हिच मैटर्स द मोस्ट in that years for
My kids or for kids? For your, like, from your understanding perspective, your kids also. What is important for them? Yeah. Uh, 1 to 7 years में क्या होना चाहिए? जैसे आप अभी जो अपनी जॉब छोड़ने वाले हो, तो why that is the case? there are many things, but मुझे ऐसा लगता है कि मैं कौन ही हूँ उनको कुछ सिखाने के लिए, राइट? सो सिखाना इज़ नॉट, मतलब ये तो बिल्कुल गोल ही नहीं है कि मैं उनको ये सिखाऊं या मैं उनको ये बताऊं, राइट? सम थिंग्स आई फील आर इम्पॉर्टेंट एंड आई कैन फैसिलिटेट. एक है जैसे लाइफ स्किल. लाइफ स्किल मतलब रिलेशनशिप टू फूड, बेसिक cooking, Basic cooking skills. basic cooking skills, right? House chores, basic, not like कि भाई पूरा बच्चा दिन भर काम कर रहा है, वैसा नहीं, but basic एक आना चाहिए कि how to handle your emotions, and that you cannot teach, you have to live that way. And I think just loving, for them to know that no matter what, we love them. Right. So आपने Giving them cooking a बोला. sense of security. Right. Yeah. Sense of security and love, basically. Yeah. Got it. Cooking की अगर बात करें तो I know you cook like lot of things and lot of good things. मेरे को योगा में बेसिकली सिखाया गया there's three kinds of food. Yeah. सात्विक, राजसिक and तामसिक. Tamasic. तामसिक में बेसिकली मीट आ जाता है, अनियन, Not necessarily, a lot of fried food. फ्राइड भी आ जाते हैं, हाँ, और ये अनियन और गार्लिक भी आ जाते हैं. Yes. राजसिक में वो राजो वाला खाना आता है जिसमें आप बेसिकली जो भी है राजसिक खाना जो कहते हैं, जैसे रेस्टोरेंट में मिलता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारा बटर घी ये सब होता है. और सात्विक खाना होता है जिसमें बेसिकली नॉर्मल दाल रोटी चावल, ठीक है, सादा खाना. तो आपको लगता है इन सबसे फ़र्क पड़ता है सात्विक खाने से मेंटेलिटी में? और आप सात्विक खाना ही बनाते होंगे नॉर्मली. हाँ. Again, this is not at all a judgment on anybody. People eat. या किसी भी जजमेंट नहीं है, हर कोई अपनी अपनी थिंकिंग है. Exactly. What works for me? Yeah. जिस दिन आप हैवी खाते हो, समझो आपने तला गला फूड ज़्यादा खा लिया, तो नींद ज़्यादा आती है. You feel lethargy. You can feel that lethargy, right? There is no denial. You eat something lighter, that day you will have more energy to do more things. राइट. वो तो होता ही है. Yeah. क्योंकि मैं देखता था जब वी गो टू अ रेस्टोरेंट, बफे चले गए, इतना ठूस के खा लिया, उसके बाद तो क्या ही होता है, फिर सोना होता है. दैट्स द थिंग. बट आई थिंक मेंटल पे भी फर्क पड़ता है. हाँ बिल्कुल पड़ता है. फ्रेश फूड का बहुत फर्क पड़ता है. फ्रेश फूड से फर्क पड़ता है. हाँ, आपने आज बनाया और अगले 4 दिन 5 दिन उसी को खा रहे हो वर्सेस यू ईट फ्रेश. राइट. सदगुरु भी बोलते हैं बेसिकली कि व्हेन यू कुक अ फूड विद इन 1.5 आवर्स यू शुड मतलब फिनिश इट. राइट. 1.5 to 4. लोग क्या करते हैं, सात्विक बना तो लेते हैं, फिर 3-3 4-4 दिन चलाते हैं. दैट इज ऑल्सो बैड. वो सात्विक थोड़ा वो फिर तामसिक बन जाता है, आई थिंक. राइट. देन इट एड्स lethargy to your system. Lethargy to itself, yeah. ऐसा मतलब आई फील इट. दैट इज ट्रू. दैट मतलब ये तो मैंने देखा है, ये तो होता ही है. बाकी व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ लाइक होम कुकिंग, लाइक सब कुछ घर पे करना है, लाइक बेसिकली फूड एज वेल एज जो भी हमारे नॉर्मल प्रोडक्ट्स भी हो गए, क्रीम हो गई, शैम्पू हो गई, इन सबको घर पे बनाना इंस्टेड ऑफ बाइंग इट फ्रॉम आउटसाइड. हैव यू डन इट? और अगर आपने किया तो कैसे, क्यों किया बेसिकली? सो पहले मैं खाने के बारे में बताती हूँ एंड देन आई विल कम टू क्रीम एंड अदर थिंग्स. खाना तो मजबूरी में बनाना पड़ रहा है मतलब बाहर का भी तो मंगवा सकते हो. बिकॉज आई डोंट ईट अनियन गार्लिक, मैं प्याज लहसुन नहीं खाती, सो इसके लिए बाहर थोड़ा ऑप्शन लिमिटेड होते हैं. एक दूसरा है कि सेम चीज़ें मिलती हैं. कितना ही इंसान आलू गोभी और फ्रोज़न भिंडी खा सकता है. हाँ, सेम चीज़ बार-बार रिपीट करते रहेंगे. प्लस वहाँ बाहर बाजार में ना आपको सीजनल चीज़ें नहीं मिलती हैं कि ठंड में जो है वो आपको ठंड के फ्रूट वेजिटेबल्स मिले, गर्मी में गर्मी के मिले, ऐसा नहीं होता है. उनका मेनू फिक्स्ड होता है एंड इट्स वेरी हैवी. यू गेट लगता है कि हैवी खाना बाहर का. ये तो बाहर बात हो गई घर की कुकिंग की. बाहर की कुकिंग की मिलता ही नहीं है जो हमको घर में रोज खाना होता है. जब आपको भूख लगती है तो आप सोचते हो ना, सिंपल दाल चावल,
वो तो बाहर मिल ही नहीं सकता। यहाँ पे एक चीज़ और हो गई, जैसे मुंबई में टिफ़िन वाली सर्विस होती थी ना, वो यहाँ नहीं है, वही तो मैं बोल वो रही साउथ बे में बहुत है। एक्चुअली वो यहाँ नहीं है तो फिर इट्स अ गुड आइडिया। तो यहाँ वहाँ साउथ बे में क्या है कि कोई भी जो आंटियाँ आती है ना इंडिया से, तो बेसिकली दे पब्लिसाइज दे मार्केट इन व्हाट्सएप ग्रुप्स कि ये भाई मेन्यू है, 5 सब्जियाँ बनेंगी, ठीक है, अपने ऑर्डर पहले बता दो। हाँ, बट फिर उसमें जाओ लेके आओ, इट्स नॉट द हाँ, मोस्ट जाओ लेके कन्वीनियंट जाओ। थिंग, राइट? हाँ, वो डिलीवरी नहीं है उसमें। हाँ, जैसे आई इंडिया थिंक यू में स्टार्टेड अ बिजनेस फॉर डिलीवरी फॉर Yeah. होम कुक फूड, Yeah, राइट? yeah. या आई नो देयर इज लॉट ऑफ कंपनीज आउट देयर। वो एक शेफ करके कंपनी है, Yes. राइट? ये सब हैं वो जो, बट इतनी चलती नहीं आई थिंक वो, क्योंकि लोगों को फिर वही सड़ा हुआ खाना खाना है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, और उनका फिर मार्जिन्स भी बहुत कम है, क्योंकि आप अगर $10, आप अगर एंड कस्टमर से कुछ पैसे ले रहे हो एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर, तो और डिलीवरी का भी देना है, खाने का भी गैस भी देना एक्सपेंसिव है, है यहाँ पे, प्लेटफॉर्म का और जो भी कस्टमर है है। उसको सबसे चीप भी चाहिए, हाँ, तो वो सब सोचना पड़ता है बेसिकली। इफ़ यू आर डीलिंग विद एंड कस्टमर देन and you will never get organic food, right? You will get pre-processed food, जिससे आपका कॉस्ट कम हो ना, then it's a business at the end of the day. राइट। और मुझको ऐसा लगता है कि खाना is one, I would say it's an art which you consume, which you take in वो your आपका पार्ट ऑफ बॉडी बन रही है। एग्जैक्टली आप खुद मैं मतलब लोग बहुत अच्छी पेंटिंग बनाए, पेंटिंग लगाओ, बट यू आर नॉट टेकिंग इन दिस, यू आर टेकिंग इन एवरी डे। या जैसे हम अपनी गाड़ी को पेट्रोल देते हैं, और अच्छा पेट्रोल देते हैं क्योंकि गाड़ी का इंजन चले, अपनी शरीर को भी हम अच्छा खाना देना चाहिए जिससे हमारा इंजन चले लंबा। हम बोलते हैं ना कि साल, आई थिंक इट्स 1 year और सम नंबर ऑफ डेज हमारे सारे सेल फिर से बनते हैं, राइट। तो जब हम पूरा ही बॉडी रिन्यू हो रहा है तो उसको सही फ्यूल लाइक यू सेड मिलना चाहिए, तभी तो होगा। राइट। और प्यार से खाना बनता है ना, तो उसकी बात अलग होती है। मे बी इट्स नॉट वेरी इजी टू पुट इट इन वर्ड्स, बट आपको पता है कि माँ के हाथ का बना हुआ खाना अलग ही जब होता है खाते क्योंकि हो। मैं जब यूएस होता हूँ ना, और मैं एक साल बाद जब इंडिया आता हूँ, 6 महीने में आता हूँ, मेरे को बाहर में गए जिम, बाहर में गई डाइट, मैं 1 महीने दबा के खाता हूँ, जो मम्मी बनाए मैं खा लेता हूँ। जो इंटेंशन से खाना बनता है ना, वो इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो है। एंड होम कुक फूड इज द बेस्ट फूड, चाहे जैसा बने चाहे जो बने। बट परांठे तो बेस्ट होते हैं हमारे नॉर्थ इंडियन कल्चर में। बट मम्मी को बोलते हैं परांठे मत बनाना, रोटियां बना फिर दो। रुक नहीं सकते। हाँ, परांठे में क्या है कि रुक नहीं सकते और इतने सही होते हैं, इसलिए जब देख लेते हैं ना, होता क्या है, मैंने आई यूज टू फॉलो अ डाइट, बट मैं ना ग्राम मेजर करके वेइंग स्केल में वो सब करता था। और मेरा था 1500 या 2000 कैलोरी खानी है, मैं बहुत पतला हो गया था। आई लॉस्ट लाइक 15 kgs। अरे बाप रे। बट आई वॉज फिट ऑल्सो। बट थिंग इज लाइक वो कितना सस्टेनेबल है, क्योंकि आप बाहर जा रहे हो, कहीं घूम रहे हो, फिर रहे हो, तो बढ़ेगा वेट। और वेइंग स्केल कहाँ लेके घूमोगे, और वहाँ पे सेम चीज़ें तो मिलेंगी नहीं। आप मैक्सिको जा रहे हो, वहाँ पे सोयाबीन थोड़ा ना मिलेगा, वहाँ कुछ और मिलेगा। तो आपको ऐसी चीज़ देखनी है जो लॉन्ग टाइम सस्टेनेबल है। तो वर्कआउट अच्छा करो, चाहे क्रिया करो, चाहे जिम जाओ, चाहे योगा करो, और खाना मतलब ठीक है एक बार बाहर का हो गया, बट देख के खाओ, बट क्वांटिटी मेजर करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक चीज़ रियलाइज। सही बात, ये तुम एकदम सही बोल रहे हो। दिस गोज बैक टू द पॉइंट आई वाज टेलिंग यू अर्लियर कि हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट कि जो आपका रिश्ता है खाने के साथ वो कैसा होना चाहिए। एंड ये अगर हम लोग बच्चों के आजू बाजू रह के हम ऐसे करें, आज तो कैलोरी ही ज़्यादा हो गई, आज तो कैलोरी ही ज़्यादा हो गई, देन इंस्टेड ऑफ नरिशमेंट, फूड जो है वो ना नरिशमेंट के जगह वो लगता है अरे बाप रे अब तो खाना आज तो ऐसा ही हो गया, आज तो वैसा ही हो गया। वर्सेस जैसे तुम बोल रहे हो, अगर आप और ऑर्गेनिकली यू स्टार्ट ईटिंग अच्छे से, तो आपके बॉडी को पता होता है कि यार आज मैंने नहीं भी खाया ना तो चलेगा। राइट। आपने दिन में ज़्यादा हैवी हो गया या लेट हो गया, मत खाओ रात में, अपने आप बॉडी विल फिक्स इट इटसेल्फ। आप वॉक कर सकते हो, जैसे बोला क्रिया कर सकते हो, उन सब से काफ़ी। मैं ऐसा सुना भी है कि जैसे सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, उसके अकॉर्डिंग ही खाना खाना चाहिए, सर्केडियन रिदम। हाँ, और बेनिफिट ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आपने बताया था, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि मतलब दिन में 6 घंटे की विंडो के बीच में खाना खा लो, ठीक है, उसके बाद शरीर को रेस्ट दो। एंड वाई दैट इज़ द रीज़न, लाइक मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। सी दिस वर्क्स फॉर अस, इसके लिए हम ये फॉलो करते हैं, राइट। बट हैविंग सेड दैट, आप ये सोचो आपका जो शरीर है उसको कितनी सारी चीज़ें हैं जो करनी होती हैं, है ना। फूड जो पचाने का काम है वो बहुत ही इट्स क्वाइट इंटेंसिव। आपके बॉडी में आप सर्टेन जूसेस हैव टू बी क्रिएटेड
the acidic level has to be certain, then it needs to mix with other things, then it needs to grind and this and that, so many things have to happen. आप क्या कर रहे हो, एक प्रोसेस 3 से 4 घंटे लगते हैं खाने को प्रोसेस होने में, सात्विक फूड खाया तो राइट, तो आपने वो विंडो वो हुआ कि नहीं हुआ, फिर से उसके ऊपर लोड आ गया, तो आप तो शरीर चले जा रहा है, चले ही जा रहा है। आपको इंजन चलते हुए आप साफ कर सकते हो क्या? सो जो आपके बॉडी से टॉक्सिन्स है वो कब निकलेंगे? व्हेन इट डज नॉट हैव लोड ना, तो उस हिसाब से इट हेल्प्स। एक चीज़ मैंने आपके घर ये देखी है कि 2 टाइम भी खाना खाया जाता है। हाँ। उसके बीच में कुछ नहीं खाना। हाँ। हम क्या करते हैं, मैं भी 2 टाइम खाता हूँ। मैं उठता हूँ 9-10 बजे, मेरा पहला खाना होता है 12 बजे, दूसरा खाना होता है 7-8 बजे। बट बीच में वाली जो विंडो होती है ना, मैं कुछ खाता नहीं बट पीता बहुत हूँ। हाँ। जैसे चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, थोड़े बहुत स्नैक्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, ये सब स्नैक और नमकीन हो गया। बट उसमें भी मेरे को पता नहीं, मेरे को लगता है कि शरीर इतना काम नहीं करता, पर काम करता है, जूसेस बनाता ही है और उतना ही एफर्ट लगाता है जैसे पचाने में लगाता है। तो बेसिकली उसको भी उन 2 विंडो में घुसेड़ दो अगर करना है तो। और चाय कॉफ़ी तो पीनी भी नहीं चाहिए, वो भी उसमें आता है आई थिंक। ऐसा हाँ आता है, कोई भी चीज़ कंपल्शन के साथ सदगुरु तो हाँ, मतलब कभी कभार कर लो। हाँ। बट हमारे जैसे वी फॉलो इस्कॉन के अलग ही चाय और कॉफ़ियाँ होती हैं। हाँ। अलग मिलते हैं, उसमें कैफीन वैफीन नहीं होता। आई नो मम्मी भेजती रहती है वो सुक्कू बनाम एंड हाँ। सुक्कू करके एक्चुअली सदगुरु का भी है। सुक्कू माली समथिंग कुछ है, मैंने मंगवाया, बड़ा सही है। हाँ बहुत अच्छा है। ईशा फाउंडेशन में जो भी ये मिलते हैं ना पाउडर, हाँ, वो बहुत मैंने बीएसपी किया था ना, उन लोगों ने अच्छे से खाने दिए थे। मैं बोला सबकी फोटो, मैं उनसे पूछता था इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, अन्ना इसका नाम क्या है, कह रहे इसका नाम ये, मैं लिख लूँ या कहीं पे है नहीं पेपर पेन, मैं लिख लेता। बहुत सही से खाना था। हाँ। जो देते थे वो लोग। मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे घर में भी होगा। हम जो एक्सपोजर हुआ जब हम बड़े हो रहे थे, जो चीज़ों से एक्सपोजर हुआ, मतलब जो सोशल मीडिया अब है या उसके पहले मूवीज़ या शोज़ जो इंटरनेशनल जो हमको, उसमें ना पीपल आर ऑलवेज मंचिंग दिस दैट, बट हमारे जो रूट्स हैं, अगर मैं मेरे और नानी दादी को देखूं, तुम भी देखोगे तो ऐसा ही होगा। दे वर लाइक फार्मर्स थे ना उन लोग सारे। नॉट ओनली दैट, आप ये देखो, मेरी मेरी दादी अभी 90 क्लोज टू 90 और मे बी लिटिल ओवर 90 है। शी इज फिट। आप इतने सारे फास्ट करती हैं, चतुर्दशी, फिर पूर्णिमा, दिस दैट, हर मंडे का फास्ट। तो पहले का फास्टिंग बहुत ज़्यादा होता था। दैट वाज अ वे। शिवरात्रि का फास्ट, ठीक है, फिर एकादशी का फास्ट, फिर पता नहीं क्या क्या फास्ट, बहुत फास्टिंग होती बहुत फास्टिंग होती थी, मतलब शरीर को रेस्ट दिया जाता था। करेक्ट, वो हम अब तो देते ही नहीं है। अब देते नहीं। अब साइंस समझ रहा है कि शरीर को रेस्ट देना चाहिए, और स्पिरिचुअल रीजन के लिए भी अलग है जो साइंस को समझ ही नहीं आता। हाँ। अगर मुझको ऐसा लगता है, अगर आप बॉडी को लिसन करोगे तो अपने आप ही यू विल नॉट कीप ईटिंग इट ऑल द टाइम। हम मूवीज आते हैं, पॉपकॉर्न चबड़ चबड़ कर रहे हैं, ठीक है क्या यार, एक बार खाने से कुछ नहीं एक बार खाने से कुछ नहीं होता, बट मैं बता रहा हूँ। और किसी के दोस्त के घर जाने चबड़ चबड़ चबड़, चलो वहाँ चलते हैं, चबड़ 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 कॉन्शियसली। दैट इज ट्रू, कॉन्शियसली खाना चाहिए। हाँ, मतलब इच्छा है खाओ, आज इच्छा है तो खाओ, आज लगता है कि खाना चाहिए तो खाओ। तभी तो सबकी तोंदें बढ़ रही हैं, प्रॉब्लम इज दैट। और पंजाबी में ज़्यादा बढ़ती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ पंजाबियों की बढ़ती हैं, सबकी तो इंक्लूडिंग जितने भी मेरे आप पापा। वो ले लो कास्ट करीड कलर जो भी इंडिया में, सबसे ज़्यादा तो उन्हें पंजाबियों की नहीं होती। इतने बड़े बड़े गिलास वो पी लेते हैं। इसमें ना रिसर्च करना चाहिए हम। हाँ, वो तो है, करना चाहिए। क्योंकि होते क्या था, पंजाबी जो थे ना फार्मर्स होते थे पहले, ठीक है, वो हल चलाते थे। दे डू लॉट ऑफ जिम मतलब एफर्ट लगाते थे उसमें फार्म में, तो वो खाते पीते थे। जैसे मैं एक दिन मैंने हाइकिंग कर ली बहुत गंदी वाली, मैं 6 घंटे हाइकिंग करी थी मैंने एक बार। सियाटल में कोलचक ले करके हाइक है, और एक अलास्का में भी करी थी। उसके बाद इतनी भूख लगी, मैं खा गया 5-6 रोटियाँ। एग्जैक्टली। अपने अब शरीर ने बोला भाई और भी जा सकता है, और भी जा सकता है, और भी, बट अभी नहीं जा सकता क्योंकि हमारी सिटिंग जॉब है। तो वो है। अब ये दादियों को मैं समझाता हूँ अपनी कि भाई नहीं खा सकता, कह रहे हमारे टाइम तो हम इतनी रोटियां खाते थे। मैं कहा आपके टाइम तो आप लोग फार्मर्स भी होते थे, किसान होते थे, अब नहीं है ना। उनका प्यार का तरीका ही वो है, खाओ। नहीं वो तो है ही है, वो जबरदस्ती डालते रहते हैं लोग खाओ। चलो ठीक है, वो अच्छा है, वो अपना इंडियन कल्चर से पहचाना जाता है, तो दैट इज़ गुड। चलो ये खाने की बात होगी, चलो उसकी थोड़े प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। मैंने एक चीज़ और देखी है कि आप बाहर के प्रोडक्ट्स नहीं लेते हो। आपने जो भी जैसे कंडीशनर, शैम्पू, मैंने जैसे सुना था सदगुरु से भी कि आपको अपने शरीर पे वो चीज़ें लगानी चाहिए जो आप खा भी सको।
ठीक है, चाहे शैम्पू साबुन ये सब भी हो गया ना, ये भी नेचुरली ऑर्गेनिकली क्रिएटेड। और आप ये कुछ चीज़ें आप घर पे बनाते हो, हाँ, राइट? क्या बनाते हो, कैसे बनाते हो, थोड़ा बताओगे आप हाँ। डिटेल में? So let's start with कपड़े. Polyester is not good for us, right? उसमें जो माइक्रो प्लास्टिक या आई डोंट नो व्हाट द नेम इज, बट वो बॉडी में अब्जॉर्ब होता है पॉलीएस्टर, सो वो नहीं पहनना चाहिए। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमेशा कॉटन कॉटन के पहने पहने। तो ऐसा पहन सकते हैं 70% कॉटन 30% पॉलिस्टर, ऐसा भी होता है ना कुछ कपड़े, या 100% कॉटन ही पहनना चाहिए? जितना हो सके 100% कॉटन पहनो। नहीं हो सकता है, अब जैसे मान लो आपने जिम ही करना है, यू कैन नॉट वेयर कॉटन, तो आप तो उस समय के लिए जैसा ठीक है अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी, राइट। बट फॉर द मोस्ट पार्ट वन शुड ट्राई एंड वेयर कॉटन। एंड इसका सिर्फ ये एस्पेक्ट नहीं है कि हमारे लिए अच्छा है, इन्वायरमेंटली ऑल्सो इट इज़ गुड एंड इकोलॉजिकली ऑल्सो दैट इज खादी बेटर, के कपड़े कहते हैं ना, तभी महात्मा गांधी ने खादी रेवोल्यूशन चलाया था। एंड वीवर्स के लिए भी इट इज़ बेटर, मतलब फॉर इकोनॉमी ऑल्सो, इकोलॉजिकली, एनवायरमेंटली एंड फॉर अस, सो ऑल ऑफ दैट इज बेटर। सो दैट इज़ वन थिंग। द अदर इज, आप बोल रहे थे क्रीम का, राइट? सो आई मेक क्रीम एट होम, वाटर बेस्ड और ऑयल बेस्ड। कौन सी क्रीम? It's a combination of just 4 things: coconut oil, almond oil, shea butter, cocoa butter, all in equal quantity, and उसको just डबल बॉयलर में लिक्विड बना के, फिर उसको थोड़ी सी देर 1-2 घंटे फ्रिज में रख के उसमें फ्रॉथ ला के इट बिकम्स अ क्रीम। बट ये जो चीज़ आपने बोली कोको बटर, ये जो भी है, ये भी तो आपने बाजार से खरीदे होंगे, या ये ऑर्गेनिक मैंने ऑर्डर, इंस्टेड ऑफ दैट ऑर्गेनिक क्रीम ही ऑर्डर कर दो, ये बेटर नहीं है? क्या होता है वो लोग शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कुछ डालते हैं उसमें। अब व्हेन आई बाय दीज थिंग्स दे आर एक्सपेंसिव, राइट? तो वो लोग तो प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, कौन खरीदने वाला इतना महंगा क्रीम? और बोलोगे बॉडी के लिए इतना महंगा कोई क्यों तो खरीदेगा? आप ये इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स खरीद लेते हो अच्छे, और फिर घर cream में खुद क्रीम बना के हम सब वही यूज़ करते हैं। चलो, तो हैंड क्रीम हो गई, फेस क्रीम हो गई, व्हाट अबाउट शैम्पू साबुन? वो तो वी गेट इट फ्रॉम शॉप, वो घर में नहीं बनाते हैं। वो लेकिन बन सकता है, बन सकता है रीठा वगैरह से, वो नहीं करते हैं। बट उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री, वो सारे जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल जो हानिकारक केमिकल्स होते हैं उनके बिना हो। प्लस वी ट्राई एंड नॉट डू शैम्पू एज मच एज पॉसिबल, यूज़ कंडीशनर टू वॉश योर हेयर एंड ऑल ऑफ, क्योंकि हम सबके कर्ली हेयर हैं। थोड़ा बताना, ये ना नॉलेज काफ़ी कम लोगों को है, जैसे मेरे को तो बिल्कुल नहीं है। मेरे कर्ली हेयर है, मैं बाल बढ़ा रहा हूँ, मैंने गंदा से बैंड पहन रखा है, मेरे बाल पहले छोटे से थे। तो शैम्पू कब लगाना चाहिए, कंडीशनर कब लगाना चाहिए, कितने तरह के कंडीशन होते हैं, लिव इन कंडीशन होते हैं, सॉरी लीव इन कंडीशन होते हैं, ठीक है? उसके बाद जेल भी होती है, लोग कहते हैं जेल लगा के गंजे होते हैं, अब आपसे सुना है कि जेल अच्छी भी होती है कुछ। तो ये मैंने ना काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया है, मैं मेरे एक्सपेरिमेंट के उससे बता रही हूँ। जब कर्ली बालों में आप यू गेट नॉर्मल जो दुकान में शैम्पू मिलता है वो आप लगाओगे, तो जिस दिन आप शैम्पू लगा के कंडीशनर लगा के रखोगे उस दिन तो बाल फिर भी ठीक ठाक दिखते हैं, उसके बाद ना ऐसे भूत बनना शुरू हो जाता है। जो कर्ली है बाल बढ़ जाते हैं, हाँ, वॉल्यूम, मतलब यू लुक लाइक अ कोकोनट ट्री। मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है क्योंकि बचपन में जैसे तुम बोल रहे हो पता नहीं था कि करना क्या है, और कंडीशनर होता नहीं था एक वर्ड इंडिया में। हाँ, नहीं होता था, खाली शैम्पू होता था और साबुन होता था, और लोग साबुन को ना इंटरचेंजली यूज भी करते थे, साबुन को सर पे रिमूव भी करते थे। पहले जब हम लोग छोटे थे तभी मुझे ये प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि घर में मम्मी मुल्तानी मिट्टी से सिर धोती थी हमारे। हाँ, ये तब मम्मी प्रॉब्लम नहीं थी, दही वही से सिर धोते हैं, बेसन दही ये लगा कर, तब नहीं प्रॉब्लम होती थी। जब से शैम्पू शुरू किया धीरे 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 वो बाल ऐसे वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ता ही चला गया। तो अब उसको सल्फेट फ्री और वो सारे पैराबिन फ्री एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो, जितने कम केमिकल्स हो सकते हैं वो यूज़ करते हैं। शैम्पू करने से पहले मसाज। पहले शैम्पू कितने बार करना चाहिए हफ्ते में? जितना कम, चलो महीने में एक बार, महीने में एक बार महीने में एक बार, शैम्पू महीने में एक बार हो गया। अनलेस यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ
एक्टिविटी जिसके वजह से स्काल्प पसीना आ गंदा रहा है। हो रहा है, हाँ। देन ऑल्सो आई वुड से कि उतना शैम्पू की ज़रूरत नहीं होती है। शैम्पू का मेन पर्पस होता है कि ऑयल हटा देना ऑयल हटा देता है तो जिससे तो बाल और डैमेज ड्राई होते होंगे। हैं। दूसरा होता है कंडीशनर, जो नॉर्मल कंडीशनर होता है, वो कितनी बार लगाना चाहिए? डिपेंडिंग ऑन योर हेयर, वो कि रोज लगा ड्राइनेस सकते अगर हैं? लग रहा है तो लगाओ, नहीं तो ज़रूरत नहीं रोज है। लगा सकते हैं उसको? रोज़ नहीं, हफ्ते में 1-2 बार? हाँ हफ्ते में 1 या 2 बार ठीक है। मैक्सिमम। और लीव इन कंडीशनर जो होता है, जो Every time you are putting some जो conditioner, हम्म so what I do is instead of washing, every time I take a head shower, I don't wash with shampoo. I many a times I wash my hair just with conditioner. Use conditioner as a shampoo, and then put conditioner through the hair and wash कर लो उसको, हटा दो उसको। हटा दिया, एंड फिर थोड़ा सा लीव इन कंडीशनर लगा के तो क्या होता है, जो आपका मॉइस्चर है वो लॉक हो जाता है। तो आपने सबसे पहले शैम्पू नहीं लगा के क्या किया, आपने ऑयल नहीं निकाला, जो ऑयल सिर में रहना चाहिए, बट यू वांट गंदगी टू गो अवे, सो दैट कंडीशनर ने हटा गंदगी दिया। कंडीशनर को स्काल्प में लगा के अच्छे से धो के वो हो गया। देन लिटिल बिट कंडीशनर ऑन द हेयर, क्योंकि जो अब आपने इधर से ऑयल निकाल दिया है और जो मॉइस्चर निकाल दिया है, यू वांट टू पुट दैट मॉइस्चर बैक। राइट। Then you put leave-in, which leave-in, as the name suggests, it is leave-in. तो उसमें Leave the conditioner in your hair. ड्राई करने के बाद लगाना चाहिए leave-in? नहीं ना, गीले में। गीले में लगा दो, गीले में। जब गीले ही हो। So keep your shampoo, conditioner and leave-in conditioner in your shower. And when you come out of shower, ये तीनों लगे होने चाहिए, मतलब ये लास्ट वाला जो leave-in हाँ है। leave-in है वो लगे रहना चाहिए। हाँ। And उसके बाद you can put a little bit of gel or mousse or some styling cream is ये जेल वेल का क्या हिसाब होता है? लोग गंजे वंजे नहीं होते जेल? नहीं नहीं, स्काल्प में नहीं लगाना ना, बाल में लगाना है। अच्छा। थोड़ा सा, और ऐसा नहीं कि बहुत सारा सारा लगा रहे हैं, हल्का सा लेके यू जस्ट डू इट, तो Got फिर it, नहीं okay. तकलीफ। एंड कर्ली बालों के साथ ड्राई में कभी भी कोम नहीं करना। हाँ, नहीं तो फिर क्या होता है, कॉम में आपके बाल झड़ते हैं। दे बिकम लाइक दिस। मैंने झड़ने का कारण क्या है? बाल, अच्छा बालों की केयर नहीं करोगे तो फिर झड़ेंगे वो। ड्राइनेस से झड़ते हैं एक, और दूसरा ऐसा लगता है कि झड़ते हैं, बट दिन के ना दिन के 100 बाल सबके गिरते हैं, हमको दिखते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो वो दिखते हैं, वो ज़्यादा छोटे में दिखते हैं, दिखते छोटे में नहीं दिखते नहीं है। दैट इज ट्रू। मतलब तुम्हारा तो पक्का झड़ने का प्रॉब्लम नहीं है, यू हैव गुड हेयर। लेकिन दिखते बहुत है ना। क्योंकि अब लंबे है ना। हाँ, दैट इज अ थिंग। चलो ठीक है, लॉट ऑफ नॉलेज शेयरिंग ऑन द बाल, ऑन द प्रोडक्ट्स, नहाने वाने का जो भी है, चलो बढ़िया है। थोड़ा बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। तो स्पिरिचुअलिटी ऑन बच्चे, ठीक है, उनको कैसे रेज करना चाहिए? हाउ, वाई स्पिरिचुअलिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर देम? व्हाट डज स्पिरिचुअलिटी मीन्स टू यू? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स आस्क दिस क्वेश्चन। It's a deep one. I don't know what it means. मतलब स्पिरिचुअलिटी क्या मीन करती है, दैट आई कैन नॉट आंसर, बट आई कैन टेल यू व्हाई आई डू इट। अच्छा, ठीक हाँ, कि मैं क्रिया क्यों करती हूँ या मैं योगा क्यों करती हूँ, आई कैन टेल यू दैट, राइट। एक तो है जो जॉयफुल नेचर होता है ना हमारा, वो धीरे धीरे ना विथ एज यू सी लाइफ, ऐसे बड़े होते हैं कम हो रहा है, कम होते हम सबसे ज़्यादा हैप्पी होते हैं जब हम छोटे होते हैं, दैट इज ट्रू, है ना। तो ये मतलब ऐसा मेरे साथ नहीं है। हाँ, सबके साथ है। नहीं, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आई एम आप अभी वेरी joyful हो, जॉयफुल। हाँ, मैं आई विल जंप अराउंड, आई एम लाइक अ किड, बट आई फील कि हम ना बड़ा छोटी छोटी चीज़ों को लेके बड़े परेशान हो जाते हैं। वाइल आई हैव दैट चाइल्ड लाइक एबिलिटी, I also can get troubled by things, and I was getting troubled by things, right? So what spirituality or the kriya I do has enabled is for me to still live with gratitude, happiness. ऐसा नहीं है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ऐसा नहीं है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, राइट। राइट।
Does it make sense? Like it's not the end of the world कि अरे ये नहीं हुआ तुम्हारे मन का, नहीं हुआ, we'll figure मतलब out. बेसिकली कोई भी एग्जांपल ले लो, अगर आप चाहते हो कि इसका सर्टेन चीज़ ऐसी हो जानी चाहिए, जैसे प्रमोशन मिल जानी चाहिए ऑफिस में, नहीं मिली तो इट डजंट मेक मतलब डिफरेंस, ठीक है नहीं मिली इट्स फाइन. हाँ मतलब उसमें I'll be able to see it clearly कि अच्छा नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, अच्छा मेरी गलती थी, let me do it differently. नॉट मेकिंग अ फस अबाउट इट या जो भी है, वो ऐसा नहीं होता. सो दैट्स व्हाट स्पिरिचुअलिटी प्रोवाइड्स यू. हाँ मतलब to live life, basically it's a way of life. I think spirituality is a way of life, Right. so that you're not getting lost in the paraphernalia of the life, Right. as in the Maya, right? माया, या. That is what I would say. राइट. एंड ऑल्सो बच्चों को स्पिरिचुअलिटी में, मतलब कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन के साथ भी वो कर देते हैं इंटरलिंक. हाँ तो दोनों में डिफरेंस है या दोनों सेम है? अरे बहुत बहुत अलग है, बहुत ही अलग है, राइट. Religion is in many ways very ritualistic, and you do not know the reason why you're doing it, because somebody has told you. Whether it works for you or not, you must do it because somebody says so. Because हमारे घर में ऐसे होता है. Spirituality is not that. You do it because it works for you. You do it because it works for you. और ये सब जैसे रिलीजन तो मतलब वही है, जैसे आपने बोला कि थोड़ा अंधविश्वास भी होता है. हाँ. थोड़ा बोला जाता है कि हाँ ऐसा इस तरीके से करना है, बट स्पिरिचुअलिटी में भी इट वर्क्स फॉर यू. ये कैसे पता चलता है? क्योंकि मैंने देखा है जैसे कोई भी क्रिया हो गई, इट टेक्स टाइम टू गेट टू नो दैट, राइट. और बीच में आपने छोड़ दिया, यू विल नॉट नो whether it's giving you benefit or not. So it's a hard thing to know, right? Yeah, it's a hard thing to Yeah, so it takes time. For some people, it does not even take that much time. हाँ, some people के लिए क्विकली जो भी है, जो हाईएस्ट स्टेट होती है वो अचीव हो जाती है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस अचीव हो जाता है. किसी किसी को नहीं होता, वो डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स. Right. That makes sense. मतलब it's like doing brush. For me, doing my kriya is like doing brush, yeah. रोज किसको बोलना थोड़ी पड़ता है कि करो. हाँ, जब मैंने शंभवी किया था सदगुरु के अंडर, उन्होंने बोला 6 महीने करो. हाँ. 6 महीने तुम्हें आदत पड़ जाएगी. जैसे ब्रश करते हैं, हाँ. आपको बोलना थोड़ा पड़ता है, आपने बचपन में किया रोज और आपको आदत पड़ गई, तो 6 महीने एटलीस्ट होता है. एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा अभी इतना, एक तो है कि उससे क्या बेनिफिट है, राइट. बट इन जनरल आप देखो हम कितना सारा पूरे समय कंज्यूम करते रहते हैं. हमारा सारा का सारा जो लाइफ है वो वेरी आउटवर्डली है कि फ़ोन देखा, इससे बात की, उसको किया, खाना खाया, एवरीथिंग इज़ आउटवर्ड. हमको समय ही नहीं है आंख बंद करके बैठने को. पहले क्या होता था, लाइट ही चली गई, लाइटें बहुत जाती थी हमारे यहाँ, लेकिन मच्छर भी तो आते थे. बट लुकिंग बैक, डोंट यू थिंक दैट वाज बहुत सही टाइम था, राइट. अरे हमारे जो मम्मी के साइड के लोग थे ना, और नानी नाना मामा, ये सारे गांव में रहते थे. उसका नाम था पलवल. हाँ. हरियाणा में था. छोटा सा घर था और 6 बच्चे रहते थे, जब 3 बहनें 3 भाई और मम्मी पापा, मेरे नाना नानी. तो छत होती थी एक, हम जाते थे मिलने, लाइट चली गई, छत पे 12-20 लोग ऐसे चारपाई बिछा के बैठे हुए हैं, ऐसे सितारे देख रहे हैं और जोक मार रहे हैं. हाँ. वो टाइम कितना सही बॉन्डिंग होती थी ना बहुत. और वो कितना रिलैक्सिंग होता है. अभी क्या है, बिकॉज ऑफ सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस, इतना काम बढ़ गया है, उसका लोग अलग अलग रहते हैं. उसके बाद टेक्नोलॉजी से लोग कनेक्ट हो गए हैं, बट कितना ही कनेक्ट होते हैं, इन पर्सन वाली तो फील आती नहीं है. और मेरे को तो ऐसा भी लगता है कि वी आर वेरी डिसकनेक्टेड अभी तो. बट ठीक है, मतलब इट्स अ लाइफ विच चोज. मतलब किसी ने बोला था यूएस आने के लिए, किसी ने नहीं बोला था. अभी पहले बता देता कोई कि भाई वहाँ पे सब कुछ टॉयलेट खुद साफ करना पड़ता है. नहीं, मैं नहीं आता. कोई गाइड करने के लिए, चलो भाई फोटो अच्छी लग रही है भाई यूएस की, मेरे दोस्त गए हुए हैं, अच्छी सी फोटो डाले यूटा की, चलो चलते हैं हम भी. बट पता नहीं था ना ये $1 = 55 रुपीज़ होते हैं, या फिर ये टॉयलेट खाना खुद बनाना पड़ता है. मतलब यहाँ पे ना घर के अंदर के काम बहुत है, बट घर के बाहर के काम बहुत सुलझे हुए हैं. दैट इज़ अ थिंग, दैट इज़ अ कोड विच समवन टोल्ड मी. तो घर के अंदर के काम सब आप ही को करने पड़ेंगे. मतलब यू कैन कॉल हेल्पर्स, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव. दैट इज़ अ थिंग. वो तो है. तो स्पिरिचुअलिटी की बच्चों में बात करते हैं, बिकॉज आई थिंक द टॉपिक मेरे को जो बात करनी है वो बात करनी है कि हाउ टू रेज अ किड प्रॉपरली. आई हैव सीन यू आर रेजिंग बोथ ऑफ अ किड्स वेरी डिफरेंट वे, एंड इट्स ऑल्सो वेरी गुड वे. मैंने ऐसे देखा नहीं है.
कहीं और, मतलब बच्चों को वो फ़ोन पकड़ा देते हैं, ठीक है, उसके बाद खाना जो भी मांग रहे हैं चबड़ 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 खाते रहते हैं। तो ईटिंग और स्क्रीन टाइम और स्पिरिचुअलिटी योगा से कैसे एक बच्चे को बड़ा करना चाहिए, एंड स्टेजेस में बताओ आप, जैसे बच्चा 6 महीने का होता है तब क्या करना चाहिए, 1 साल का होता है क्या करना चाहिए, तो जैसे जैसे चेंजेस होते हैं बच्चे में, आपने देखा है अभी जोशिता इज़ लाइक 6 years old, राइट? 7, तो थोड़ा 7 years तक बात करते हैं, क्या क्या आपने किया है? कोशिश करते हैं, लेट मी सी व्हाट जिससे आई मेरे बच्चे हो तो पता चले कि कैसे करना है, मैं ये वीडियो दोबारा देख लूँ। थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले तो इट्स अ प्रिविलेज, मतलब मैंने ये आई डू नॉट थिंक कि मैं उनको रेज कर रही हूँ, एंड आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई वांट टू से दिस एंड इट साउंड्स गुड, बट what I have given my kids, they've given me probably 20x more back in terms of me growing as a human being, in terms of me gaining more patience, in terms of me understanding life, understanding love, understanding care, you know, so many things they've given me. So forget about me raising them, they've raised me. So I have a lot of gratitude, number one. Number two, I always thought of them as not somebody who is, you know, ये तो छोटा बच्चा, इससे क्या होएगा, not that. They have a small body, that's the only thing. कि इनका ना अभी शरीर छोटा है, अभी बात नहीं अच्छे से कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि they are not, they should be not included in so many things. Yeah. So first, I would say first year, अगर पूरा एक क्लब करें, what they need is a lot of affection. जो मैंने देखा है, they need a lot of touch, they need a lot of you know, affection, hugging and kissing and all of that, holding them, खेलना उनके साथ खेलना, and खेलना क्या ऐसा, it's as simple as you just sitting there and doing ta for 5 minutes and they'll be very happy. Just doing that much is enough for them. And it's not necessarily about the quantity of time, that also matters, but quality of time also is very important in my opinion. Got it. And उनसे बात करना कि हर बारे में, इंक्लूडिंग अभी जैसे वो 7 साल की है, तो मैं उसको बोलती हूँ आज ना मेरा मन, आई एम नॉट फीलिंग गुड, हो सकता है कि मैं आज थोड़ा चिड़चिड़ करूँ, इट्स तो समझ जाती हूँ, नहीं, कई बार नहीं भी समझती है, बट एटलीस्ट अगर मैं आउट ऑफ वे जाके मैं चिड़चिड़ कर रही हूँ, तो एटलीस्ट उसको पता है कि ना आज मेरी माँ गलत थी, एंड वो बोलती है मुझे, माँ आज आपने बहुत गुस्सा किया, मम्मा आज आप बहुत चिड़चिड़ कर रहे थे, यू नो, बिकॉज आई डोंट थिंक कि वो मुझसे छोटी है तो आई एम ऑलवेज राइट एंड शी इज़ ऑलवेज रॉन्ग. राइट. It's a privilege I have to see them grow in front of me. It's a privilege I have that they love me unconditionally and trust me with their life. I don't know if anybody ever has trusted me this much. Right? चलो ये तो 1 साल के बारे में बात हो गई, when 0 to 1, उसके बाद बेसिकली इट कैरीज ओवर आफ्टर 1 to 7 ऑल्सो, कि लव it's a involvement, Manish. Yeah. It's absolutely about, you know, involvement with them. मैंने एक चीज़ ये भी देखी है कि यहाँ पे पेरेंट्स आर वेरी कम्पेटिटिव. Oh, हाँ. चलो मैं जब डेल में था, मेरी मैनेजर की बच्ची थी, शी वाज लाइक 6 महीने में हमारी बच्ची जो है वो उठ के बैठने लगती है. 4-5 साल की थी आई थिंक. स्विमिंग की क्लासेस, कराटे की क्लासेस, ठीक है, पियानो, गिटार. 4 बजे चालू होती थी, 10 बजे क्लासेस ख़त्म होती, रोज़ का ये हिसाब था, ठीक है. और मैंने कहा क्यों करवा रहे हो, इतना स्ट्रेस दे रहे हो बच्चे को, 1-2 दे दो बस क्लास है. इतना कह रहा है उसका बच्चा देखो, चाइनीज़ों का बच्चा, वो ये है वो है. मैं चाइना की लड़ाई थोड़ी करनी है आप. This was another thing, Manish, जब हम when we were thinking, right, कि हम we want to have a kid. मैं लकीली जैसे मैं बड़ी हुई, मम्मी ने मुझे कभी नहीं बोला वो शर्मा जी के बच्चे को देखो उसके मार्क्स तुमसे ज़्यादा आए हैं, मम्मी ने मुझे कभी नहीं बोला. तो
इनवेरिएबली आई ऑल्सो थॉट दैट कि मैं मेरी बेटी को किसी और से नहीं कंपेयर करूँगी, वो जैसी है मेरी है ना, भगवान ने मुझको दिया है, तो मेरा जॉब जो है वो सिर्फ ये है कि मैं उसको फैसिलिटेट करूं, वो जिस भी चीज़ में अच्छी है उसको मैं उसमें आगे बढ़ाने की अगर मेरे में हिम्मत है तो मैं करूं. आई लव हर फॉर व्हाट शी इज. अगर मेरे पास गेंदे का फूल आया है और मैं उसको गुलाब जैसा ट्रीटमेंट दूं कि अरे ये तो गुलाब का फूल बनना चाहिए, गेंदे का क्यों बन रहा है? Who am I to do that? Everyone is different. Everyone is different. Yeah. And how can I say my genda fool better than your genda fool? Right. वो तो You know? So कंपेयर नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं. कंपेयर करना है तो आपस में खुद के बच्चों को भी नहीं कंपेयर करना. हाँ. और किसी और के बच्चे से तो करना ही नहीं, क्योंकि उनका घर का एनवायरनमेंट अलग है. राइट. उनके सिचुएशंस अलग हैं. हर किसी की अपनी अपनी जर्नी है. और वो जिस चीज़ में अच्छा है, आप हो सकता है ना, नहीं, अगर आप हमने वो कहानी पढ़ी है राइट, कि चींटी को आप बोलोगे कि तैर के दिखाओ और मछली को आप बोलोगे कि पेड़ पे चढ़ के दिखाओ, तो दोनों ही फेल हो जाएंगे ना. राइट. हाँ, जिसमें कैपेबिलिटी नहीं है तो वो कैसे कर पाएगा? या दैट इज ट्रू. एंड ऑल ऑफ दिस कंपैरिजन इज ओनली सो दैट दे कैन अर्न मनी. अर्न मनी करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट? दैट इज ट्रू. मनी तो ऐसा ही है कि वो आ जाएगा चला जाएगा, मनी कमा लेंगे, ठीक है, बट द थिंग इज लाइक कल्चर और बेसिकली एवरीवन इज डिफरेंट. हाउ डू यू डील विथ व्हेन थिंग्स डू नॉट गो व्हेन व्हाट you know how you wanted things to happen or what you planned for and they did not happen? क्योंकि ऐसा हो ही सकता है ना. डिसअपॉइंटमेंट से कैसे डील करोगे वो ज़्यादा मुझको लगता है कि इम्पोर्टेंट है बच्चों को शायद सीखना. और वो भी हम नहीं सिखा सकते हैं, हम सिर्फ यू नो वी कैन जस्ट शो इट कि हमारे साथ ऐसा हुआ, बट ऐसा कभी कभी होता है, लेट्स गेट अप एंड वॉक अगेन. अगर हम बच्चों को, मतलब आई हैव ट्राइड विथ हर कि I remember she had just started walking. She was probably 14 months. सड़क में चलने गई, ठप करके गिर गई. And I was 5-10 कदम उसके आगे थी. My first instinct as a mother was to feel bad कि कैसे मैं उससे 5 कदम आगे थी. And I did not, you know, मतलब ऐसा नहीं था कि अनसेफ एरिया में थी. Don't get me wrong. She was in a safe place. कैसे कोई गिर के, ऐसा नहीं कि गाड़ी वाड़ी आ रही थी. She was in a private road. My first instinct as a mother was to blame myself first, then to go and pick her up. But I took a deep breath. I turned around and I actually clapped. And I said, "You did great. Get up and come here." And she was like, "Okay, big deal. Get up and walk again." But हम जब बच्चे गिर जाते हैं तो हम चाहते हैं कि वो कभी दुख ना देखें, हम चाहते हैं कि उनको कभी कोई तकलीफ़ ना हो, हम चाहते हैं उनका कभी दिल ना टूटे, हम चाहते हैं कि वो ना हमेशा हर चीज़ में सक्सेसफुल हों. तो फिर वो जब फेल होंगे तब हम क्या करेंगे? क्यों फेलियर तो आएगा एक दिन ना. सवाल ही. और फेलियर आता नहीं है, इट इज़ हाउ यू लुक एट इट. कि तुमको ना 70 मार्क्स आए हैं, ओ माई गॉड आई एम अ फेलियर इन माई लाइफ, राइट? Somebody who got 30 will think, "You're 70 पास हो गया मैं." So it's all about perspective, right? I am not saying कि 70 मतलब आप अपने आप को महान बोलो. You should understand that 70 is 70, but 70 is not end of life. Neither 100 is end of life. हमारे टाइम ये बहुत चलता था ना. when in my undergrad basically I did my undergrad 2008 से 12 के बीच में, उसमें हर कोई मार्क्स के पीछे जाता था. हाँ. तो मैं पटियाला में करी थी और आई एम फ्रॉम दिल्ली. तो पटियाला में क्या होता था, जैसे जब एंड सेमेस्टर चल रहा होता तब आते थे एग्जाम्स, और हम एग्जाम दे के निकल जाते थे दिल्ली. तो जो लोकलाइट्स होते थे ना पटियाला के लोग, पंजाब के, वो आते थे जब एग्जाम के वो आंसर्स मिलते थे ना, सर यहाँ 2 नंबर बढ़ा दो, सर यहाँ 5 नंबर बढ़ा दो, सर ये 3 नंबर बढ़ा दो. हम दिल्ली वाले सोचते थे वहाँ पे घर बैठ के, यार क्या जाएंगे इतना दूर पटियाला में, बढ़ाने दो इनको, ठीक है ये सब. अब वो बढ़ा के उनके जीपे आ गई 9, 9.5, 8.5. मैं नहीं कह रहा उन्होंने कुछ उखाड़ा है लाइफ में. हर कोई सेम बोर्ड पे ही है, हर कोई वही मतलब जॉब कर रहे हैं, हर कोई अपनी लाइफ में हैप्पी है. उल्टा जिनके कम नंबर थे ना, वो अब स्टैंड अप कॉमेडियन बन के बैठे हुए हैं, ठीक है. जो मार्क्स है उससे थोड़ी इनर हैप्पीनेस का कुछ फर्क पड़ता है. तुम खुद बताओ मनीष, ज़रूरी है क्या पैसा है तो आप खुश हो गए? नहीं, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है. और पैसा नहीं है तो दुखी हो गए, ये भी नहीं है.
है ना, शादी हो गई है तो खुश हो गए ऐसा भी नहीं है, शादी नहीं हुई है तो दुखी हो गए ऐसा भी नहीं है। राइट, वही है। अच्छा, इस बारे में शादी से आपने बात करी, शादी करनी चाहिए? इट डिपेंड्स। ओके। मतलब आजकल लोगों को शादियाँ करनी नहीं है या शादियाँ हो नहीं रही है, जो भी है। ये तो बहुत ही लेयर्ड टॉपिक है, बिकॉज आई फील पीपल वांट नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। इफ दैट इज द थिंग, तब ना ही करो। नहीं तो फिर यू गॉट टू थिंक अबाउट इट कि क्यों नहीं और या क्यों हाँ। नहीं, मैं आपको बताता हूँ अपना पर्सपेक्टिव। सो बेसिकली क्या होता है कि ये शादी वाला जो टॉपिक है ना, इसमें बिलो 30 यू आर वर्किंग ऑन लाइक योर सेल्फ, काम हो गया, ट्रैवल हो गया, जो भी हो गया। आफ्टर 30 माइंडसेट चेंजेस। मेरा तो हुआ था हाँ चेंज। हाँ होता है। मेरा हुआ था कि भाई भाई वो हो रहे हैं, बुढ़े हो रहे हैं, ठीक है, चाहे ना भी हो रहे हैं एज से, बट हो रहे हैं, अब थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड हो जाते हो, तो फैमिली के बारे में थिंक। इट्स ऑल्सो बिकॉज उस समय में तुम्हारे सारे मतलब काफ़ी सारे दोस्तों की शादी हो चुकी होती है, उनके शायद बच्चे हो चुके होते उनके हैं। बच्चे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो वो भी होता है कि भाई क्या अजीब सी चीज़ हो रही है ये। और हर कोई, जब भी तुम फंक्शन में जाते हो, फैमिली से मिलते हो, कब कर रहे हो शादी, कब कर रहे हो शादी, तो ये सुन सुन के पक जाते हो तुम। और फिर ये एक चीज़ ये हो गई। फिर एक तो हो गया पीयर प्रेशर में तुम शादी कर रहे हो। दूसरी रीज़न हो गया कि यू फाइनली मीट अ पर्सन जिसमें यू फील द कंपैटिबिलिटी, ठीक है, जो यू आर लुकिंग फॉर दैट वाइब। एंड देयर इज नो थिंग कॉल्ड अल्टीमेट बीइंग, कि भाई एक अल्टीमेट बीइंग आएगी ऐश्वर्या राय टाइप्स या फिर ठीक है ऋतिक रोशन टाइप जो तुमसे शादी करेगा। वो तो है ही नहीं। हम नॉर्मल लोगों से शादी करेंगे, ठीक है। और तुम्हें क्या लगता है वो दे विल बी हैप्पी? नहीं, वो भी उनके डिवोर्स हो रखे हैं, ठीक है, 3-4 जो भी है, तो वो सब है। और ये भी लगता है कि आजकल जितना आप अपने एज में बढ़ते आते हो ना, उतना आप रिजिड हो जाते हो अपने रिक्वायरमेंट्स में। आप जब बिलो 30 थे तो यू कैन डेट एनीवन, यू आर मोर ओपन। अभी क्या है, आपको ये चीज़ चाहिए, आपको ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, वो करते करते ना फिर एज भी बढ़ती रहती है। सही बोल रहे हो। वो सीमा आंटी का एक शो आता है ना, वो इतनी बड़ी नेटफ्लिक्स में शो, आपने पता नहीं, एक सीमा आंटी का शो है, वो एक्चुअली मैच मेकिंग है, मैच मेकिंग बाय सीमा आंटी ऐसे कुछ है। तो वो लेती है 20-20 लाख रुपए मैच मेकिंग के। वो उसका पहला खर्चा होता है 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, एंड देन अगर सक्सेसफुल हो जाता है देन वो 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लेती है। बाबा रे। बहुत पैसे लेती है। उसका पूरा शो है बेसिकली। बहुत उस एपिसोड में क्या दिखाते हैं, एक लड़का है, लड़की की पूरी हिस्ट्री दिखाएंगे कि लड़का भाई बहुत कमाता है, 35 का है, और उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट, वो लिस्ट आती है, ठीक है, ये 10 रिक्वायरमेंट है, वेजिटेरियन होना चाहिए, लड़की की हाइट ये होनी चाहिए। फिर 5-6 लड़कियां दिखाएंगे, ठीक है, उनका ये सीन चल रहा है, मतलब ग्लैमरस लाइफ, न्यूयॉर्क में रहती हैं, वो लड़का गुजरात में, इंडिया में, देसी बंदा बट अच्छा स्टैब्लिश है। लड़का यही होना चाहिए, एक्सेंट बोलनी आनी चाहिए, ठीक है, यहीं की पैदाइश होनी चाहिए, मेरी तरह होना चाहिए, ठीक है, और बच्चे नहीं पैदा करने कभी, ठीक है। आजकल ये बहुत चल रहा है, बच्चे पैदा नहीं करने, ठीक है, ये ट्रेंड चल रहा है आजकल, क्योंकि उनको अपनी लाइफ जीनी है, ठीक है, हमें ट्रैवल करना है, अपने को वी स्पेंड टाइम टुगेदर, मैं करो ना। बट आई थिंक इट्स गुड, हमारे पॉपुलेशन बहुत है, ज़रूरी नहीं है मतलब। बट मेरे को ऐसा लगता है कि यार हम बच्चे पैदा करने के लिए हुए हैं, मेरे को ऐसा लगती है फील, मतलब दैट्स माय फीलिंग कि मतलब एक तो पीढ़ी बढ़ाएं, किसी को तो आगे बढ़ाएं, मतलब बेसिकली, क्योंकि बुढ़ापा जब आएगा तो आई नो कि देयर शुड बी ए पार्टनर, बट बच्चे अगर 5 से 10-15 हो आपके आसपास, कितना अच्छा लगेगा। एक का बर्थडे हो रहा है, एक का ये फंक्शन हो रहा है, सब गेट टुगेदर कर रहे हैं, फैमिली वाली बॉन्डिंग वाली फील आएगी कंपेयर टू यू आर अलोन। Do you want to have kids because when you are old then they take care of you, or they नॉट टेक केयर, वो तो चले जाएंगे, मेरे को पता है, बट एक फैमिली वाली वो रहेगी, मतलब बेसिकली गेट टुगेदर रहेगा। What you're saying is emotional needs. You have emotional needs, हाँ, right? That is different, right? मतलब because you are saying you have emotional needs, that's a different sort of a perspective. हाँ, But many people do it because many people have kids because it's a peer pressure, or it seems like the natural thing to do कि अब शादी हो गई है, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, या जो भी है। कुछ लोग नहीं भी करते, बच्चे नहीं भी करते, वो भी है, दैट इज। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बच्चे करें तो you have to give as much as you can, not in terms अच्छा of raise money, करो उनको। not in terms of money, not in terms of toys, but in terms of yourself, कि कितना आप अपने से बेटर अगर आप ह्यूमन बीइंग बना सकते हैं तो इट मेक सेंस, नहीं तो देयर इज इनफ पॉपुलेशन। अपने से बेटर कैसे बनाएंगे, मतलब हमें अपनी कमियां भी तो पता होनी चाहिए ना, लोगों को अपनी कमियां नहीं पता होती। अगर आप बोलो कि बच्चे को, जैसे आपने बोला, जाके पानी पियो 1 बार 2 बार, बच्चा पूछेगा क्यों,
एक समय आता है ना जब बच्चा क्वेश्चन करने लगता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जिस कितना बदतमीज है, क्यों सवाल करता है। आपको क्या लगता है कि आपने बोला तो उसने कुछ करना ही चाहिए, राइट, तो वो आपसे बेटर कैसे होएगा? बिकॉज इनवेरिएबली यू आर ट्राइंग टू से कि जो मैं बोलता हूँ वो तुम करो, तो वो रिबेल बनेगा, आपसे बेटर नहीं बनेगा। राइट, वो तो है। आपसे बेटर तब बन सकता है या जब आप उसको बोलो यार मैंने तेरे को ये जो चीज़ बोली थी ना ये गलत है। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से मालूम है मनीष, कि हमको ऐसा मतलब माँ बाप को कई बार ऐसा लगता है कि वो उनके बच्चों के रोल मॉडल होने चाहिए, राइट? बट ऐसा बोलते हैं ना कि इफ़ यू एम फॉर स्काई देन यू विल एटलीस्ट रीच स्टार्स। तो और एक्चुअली यू नो रीच फॉर द स्टार्स सो दैट यू You'll reach कैन the sky, सम, जो, राइट? हाँ, तो इफ अगर उनके रोल मॉडल आप बन गए तो ये तो फेलियर है ना। तो मैं उनका रोल मॉडल कौन होना चाहिए? पक्का मैं तो नहीं, कोई और हो? मतलब कोई ऐसा जो अपने लिमिटेशन से आगे बढ़ जाए, जो तुमने मुझसे स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोला था। इन अ वे फॉर मी स्पिरिचुअलिटी और एनी ऑफ दैट इज being able to break my limitations. Right? What are those limitations? Yeah, I am hungry, but I want to do something, or something needs to be done. Not even want, something needs to be done. Am I getting hungry, or can I handle it? Right? It's one limitation. I have a lot of pain. I am so engrossed in my pain that I cannot see anything else. But this kriya has given me ability to look beyond my own pains and do something which probably I would have not done, thinking that I'm not the center of the universe in a way, right? तो कौन होने चाहिए उनके role model? It's about, of course, them, but reading about figures like Swami Vivekanand, अच्छा, वो टाइप लोग होने चाहिए right? जिन्होंने बहुत Bhagat कुछ Singh, अचीव किया है। or people like that who've gone beyond limitation. Ram, Krishna, reading about them so that they are not looking for कि ये पैसे कमाने हैं। कमाओ, there's nothing wrong in it, but that cannot be the only thing. You cannot define success with that. Success means health है, wealth है, ओवरऑल राउंड पर्सनालिटी satisfaction है, है, yeah. exactly. I will throw you at the deepest end of the pool. Can you come out of it? Whether you know swimming or not, that's not my problem. You see what I mean? क्योंकि लाइफ तो वही करेगी ना, राइट। सो अगर आप आपके लिमिटेशन से आपको डिफाइन करते जाओगे, जो कि हम करते हैं। तुम मुझे बताओ, स्वामी विवेकानंद एंड मैं, अगर हम कंपेयर करें, कौन होना चाहिए मेरे बच्चे का रोल मॉडल? आप? मैं नहीं। हाँ, मतलब मैं समझ गया, बट उसको स्वामी विवेकानंद एक्चुअली डजंट लिव राइट नाउ, बट उनकी बुक्स हैं, उनके बुक्स तो हैं, बुक्स से पढ़ के बनते हैं। राम है, कृष्ण बट है, यू आर so द many, वो एक दो है ना, गुरु गोविंद सिंह दोन खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो। मतलब गुरु और भगवान में बड़ा कौन है? गुरु बड़ा है, क्योंकि मतलब tells you कि भाई ये भगवान है। हाँ, तो वही है, आप गुरु हो और वो भगवान है, तो आप बताते हो कि भाई इनकी पूजा करो, इनको देखो। तो यू आर ऑल्सो बिग इन द लाइफ बिकॉज यू आर गाइडिंग द पर्सन टू दैट पाथ। I think of it as a privilege, and I think of it as my, मतलब this is the least I can do for the trust they have in me. मुझे क्या लगता है मनीष, मालूम है क्या? In general, if I try to put it in maybe a sentence, love is not limiting, it's liberating. So love can never control you. Love should always liberate you. Right. है ना? कि अच्छा मैंने जो बोला वो तुमने नहीं किया, you don't love me. ऐसा नहीं होता है। अच्छा, you have a question, what is your point? Right.
अभी जैसे मैं यहाँ थी, वो नाना नानी जी के साथ अपने घूमने के लिए गई. She was only 6. For a long time, I did not feel कि अरे बाप रे वो मुझसे दूर जा रही है. Did I want her with me? Of course. But at the same time, I'm like, go girl, have fun. You can do this. You can handle yourself. You know, and of course Nani is there. Everybody is there. You getting what I'm saying? So love has to be liberating. It has to be encouraging. It has to become the wind beneath the wings, Right. which kids have, or anybody for that matter. It's not just about kids. Anybody you love, Yeah. you cannot control them. Also, raising kids in India versus here, what do you feel which is better? I don't think Manish, it has to do with India versus Location. here. I think it's very home specific. ये मतलब जो आप कल्चर परवरिश देते हो घर में वो मैटर करता है. हाँ, कि आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा है, आप क्या चीज़ें खुद क्या कर रहे हो. क्योंकि अगर इंडिया में भी अगर लड़ाइयाँ चल रही है घर में या जो भी है, और दैट ऑल्सो डजंट मेक सेंस, राइट. और यहाँ पे सब कुछ भक्ति भाव वाला योगा चल रहा है, क्रिया चल रही है, तो दैट इज व्हाट दैट मैटर्स. हाँ, कि मेरे को ऐसा लगता है इंडिया इज बेटर बिकॉज वहाँ पे थोड़ा स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा है, वहाँ पे तीर्थस्थान ज़्यादा, बट नॉट एवरीवन फॉलोज दैट एंड नॉट एवरीवन लिंक्स. तुम्हारा ऐसा एक्सपीरियंस है बिकॉज तुम्हारे घर का माहौल ऐसा है. सबके घर का माहौल ऐसा नहीं है. इंडिया में यहाँ पे भी घर घर में बहुत क्लेश हो सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स कि घर का क्या माहौल है. सो it totally depends on the environment. I don't think it matters कि whether इंडिया में है कि यूएस में है कि you might be in Vegas. बच्चों को मतलब इधर दादा दादी या मॉम डैड के साथ पला बड़ा होना चाहिए. ऐसा नहीं कि उनको लूज छोड़े. दैट इज व्हाट लाइक डे केयर में डाल दिया वो सब. देखो डे केयर में भी डालना लिमिटेशन मतलब ज़रूरत हो सकती है, बट आप उसके बाद क्या करते हैं वो डिपेंड करता है ना. अगर बच्चा आपसे बार बार ये सुन रहा है अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, आप अगर ऐसा है तो आप मे बी यू वांट टू कार्व आउट अ लिटिल बिट ऑफ टाइम एवरी डे, मे बी 20 मिनट तो 20 मिनट बात करो बच्चे से. हाँ, कि क्या प्रॉब्लम जैसे मुझको ऐसा लगता है क्योंकि ये मेरे मम्मी ने किया शायद इसलिए. जैसे मम्मी को मेरी सारी दोस्त पता थी, सारे नाम पता थे. मैं बचपन से आई यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम स्कूल एंड माँ आज स्कूल में ना ऐसा हुआ, इस लड़की ने मुझे ये बोला, उस लड़की ने आज ऐसा किया, उस बहुत लड़की ने मेरा पता मम्मा आज मैंने उसकी पेंसिल तोड़ दी. तो मम्मी ना याद रख के नेक्स्ट दिन मुझे पूछती थी बेटा तूने उसको सॉरी बोला क्या, कल तूने नहीं बोला था. अच्छा मम्मा आपको याद है, यू नो. सो अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो यू विल नो कि उनके लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि सून अ टाइम विल कम व्हेन दे वुड वांट टू बी वेरी इंडिपेंडेंट. देन वो किससे बात करेंगे, राइट. फिर आप नहीं रहोगे क्योंकि आपने तो कभी सुना नहीं ना. तभी इतनी मूवीज बनती हैं और इतना हम देखते हैं कि बच्चे अकेले पड़ जाते हैं एंड दे ग्रो अप इन दैट अकेलापन, राइट. एंड देन दे आर हैव अ डिफरेंट कैरेक्टर, गुस्से वाला कैरेक्टर, एग्रेसिव अप्रोच टू द लाइफ एंड ऑल. if you become a safety net for them, then I think मतलब it worked that way for me. Right. मेरे मम्मी पापा were safety net for me, तो Right. I always went back and I spoke to them about everything. Yeah. नहीं सेम was with me also. एक बार क्या हुआ था, बस में हम जा रहे थे स्कूल, मैं छोटा सा था एंड किसी ने मेरे को सुना दिया था बेसिकली, एंड शी वाज अ मॉनिटर इन दैट बस. सुना दिया था इन द सेंस कि मतलब सीट चेंज कर ले, वहाँ चले जा. मेरी सीट असाइन थी, मेरे को यहीं बैठना. मैंने कहा मैं तो यहीं बैठूंगा. उसका मैं मॉनिटर हूँ, तो उसने बोला था नहीं उठ, तो वहीं पर लड़ाई हो गई थी एंड आई डिड नॉट डू एनीथिंग. आई वाज लाइक वेरी सैड. मैंने मॉम को आके बताया, मम्मी ने सुनाया उसको. फिर बाद में अकेले अगले दिन घर जाके कि तूने ऐसा बोला क्यों, एक दो बच्चा है तेरे से 5 साल छोटा है वो सब. तो माई मॉम वॉज ऑल्सो लाइक सेफ्टी नेट फॉर मी, कुशन कि आई कैन फॉल बैक एंड गो फॉर गाइडेंस एंड ऑल. अभी भी तो अभी भी कुछ भी होता है, रिलेशनशिप एडवाइस एनीथिंग, आई कैन गो टू माई मॉम डैड, आस्क फॉर एनीथिंग. मैं पापा ही बोलते हैं ना चल शादी कर ले खत्म कर. मम्मी अरे खत्म कर, वहाँ से लाइफ चालू होते, खत्म क्यों करना है, यूज द करेक्ट लैंग्वेज. ये सब तो या दैट इज़ ट्रू. अपना कल्चर मतलब बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि डिपेंड्स, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर करता है, विच इज़ ग्रेट एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि अपना कल्चर, अपना जो घर जैसे हम पले बड़े हैं, इट वॉज वेरी नाइस. दैट इज़ ट्रू.
और हमने काफ़ी बातें करी हैं, मतलब कमिंग बैक टू द टॉपिक एंड जो हमारा हेडिंग है शो का, माइंडफुलनेस, तो और कुछ बोलना चाहते हो आप, शेयर करना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हेल्दी लिविंग, कुकिंग, व्हाटएवर? I think it's very appropriate that you call this mindfulness. I would say कि जो भी करना है लाइफ में, right? Whether it is raising kids or not having kids, marrying or not marrying, eating this or not eating that, थोड़ा सा क्वेश्चन करके, नॉट बिकॉज सब लोग कर रहे हैं इसलिए करो, ऐसा नहीं है. माइंडफुल अगर रह के हम करें, एंड दैट हैज़ बीन द जर्नी I'm on, you know. आज हम बात कर रहे थे पॉडकास्ट के पहले कि हमारे बच्चों के सरनेम ने अलग है. दे डोंट कैरी आवर सरनेम. राइट. मेरा सरनेम आपका मोड है. मोद है, राइट? आई डिड नॉट चेंज माई सरनेम. और सुभाशीष का का चक्रवर्ती है. बट हमारे दोनों बच्चों आपने अपना सरनेम भी चेंज नहीं किया? मैंने मेरा और सरनेम बच्चों का सरनेम दोनों पे भी नहीं रखा? कश्यप है. कश्यप है, वो अलग चल रहा है. They don't carry Shubhashish's last name and they don't carry my last name. So what I'm trying to say, I'm not saying this is right, right? दिस इज द वे ऑफ यू थॉट अबाउट इट, कि स्टेटस को चैलेंज किया कि ऐसा क्यों मैंने कर रहे हैं क्वेश्चन किया कि ये क्यों करना है. मैं और शुभाशीष टॉक्ड अबाउट इट कि ऐसा ही क्यों, राइट? तो अगर हम माइंडफुल रह के कोई भी डिसीजन चीज ले करें, और डिसीजन अंधाधुंध विश्वास ना करें. किसी भी चीज पे, एंड इट इज ओके टू क्वेश्चन योर पेरेंट्स, योरसेल्फ, योर यू नो रिलीजन, योर थॉट्स, योर कुछ बिलीफ. भी. क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लगता है कि इवन जो हमको माइंड बोलता है ना, ये नहीं हो सकता है. कितने बार मनीष ऐसा हुआ होगा कि माइंड ने बोला अब नहीं हो सकता, बट यू पुश योरसेल्फ अ लिटिल बिट मोर एंड यू लाइक वाओ दैट वाज अ जॉब वेल डन. राइट. तो माइंड भी एक माया ही है. So if we do things more consciously, is I would say is the way to go. And I think in spirituality helps you ground yourself in that truth Nice. and not be fearful. That is true. Yeah, that is really a nice thing to say, because you question the status quo कि भाई Yeah. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं. हाँ. And spirituality always gives you courage Yeah, कि भाई जो हम कर रहे हैं that is right. yeah. And जो हम कर रहे हैं maybe Let's explore. Let's see जो what गलती happens. होगी तो क्या होगा, हम वापस उसको आ भी जाएंगे. own करेंगे. हाँ, वापस आ जाएंगे अपने हाँ. रूट्स पे जो भी है. उसमें क्या है? Let's do something else. हाँ, मतलब And explore. गलती करने के डर से आप वही करो जो पूरी दुनिया आपको बोल प्रेशर रही कर करने रही के है, लिए. तो मतलब यू आर नॉट Yeah. लर्निंग एनीथिंग न्यू. राइट. नो, दैट इज़ ट्रू. मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला. दैट ऑल्सो लाइक मैंने भी कुछ उसके बारे में काफ़ी सोचा, एंड आई डोंट हैव एन आंसर, करेक्ट राइट आंसर कि हाँ यार, मेरे बच्चों का नाम अगर मैं छाबड़ा हूँ, हाँ. तो बच्चों का नाम छाबड़ा क्यों रखूँ? हाँ, मैं कुछ भी रख दूँ. कुछ भी रख दो. मतलब छाबड़ा इज़ द आइडेंटिटी विच इज़ असाइन टू दैट पर्सन, कि मेरे मतलब जो मेरे को असाइन हुई है, जो मेरे फोर फादर से आ रही है. हाँ. तो दैट इज़ वन वे, बट वाई हैव टू एसोसिएट दैट आइडेंटिटी? दैट इज द थिंग. आई कैन एसोसिएट डिफरेंट आइडेंटिटी. Yeah. Do you know what was Ram's last name? रामचंद्र. Ramchandra was his full name, as in first name, First not name. last name. नहीं, मेरे को नहीं पता. कृष्णा? कृष्णा था. नहीं, I'm saying कृष्ण नहीं, भगवान कृष्ण का का पता है? last name नहीं पता. थे ही नहीं, आई थिंक. होंगे भी तो how does it matter? The last name doesn't matter. और जो भी in my बिग पर्सनैलिटीज opinion. हुई हैं, उनके फर्स्ट नेम ही पता होते हैं. स्वामी विवेकानंद जो हैं, उनका लास्ट नेम नहीं पता. क्या पता है? बस स्वामी लग गया नाम हाँ, के उनका आगे. बचपन का नाम नरेंद्र था. तुम्हें पता है पूरा नाम क्या था? नहीं पता. नहीं है ना. सो लास्ट नेम से क्या है, मतलब दिस इज अगेन सॉर्ट ऑफ एन ईगो एसोसिएटेड इन अ सोसाइटी वेयर यू नो वी शुड कैरी आउट. अरे ऐसा नाम में रखा ही क्या है जो तुमको कैरी करना है? एंड इफ यू नो, डू यू सी व्हाट आई एम सेइंग? दैट इज ट्रू. या. They will learn what they have to learn. We don't need to Right. put a stamp on them. Oh, they were ours. दैट इज ट्रू. कूल. आई थिंक इट वाज अ फूड फॉर थॉट. काफ़ी कुछ सीखने को मिला मेरे को. एंड मुझको भी. मेरे को तो आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर बीइंग Thank पार्ट ऑफ द you. शो, एंड आई विश यू लक Thank and you, all the happiness. And then maybe we should schedule more Yeah. like episodes talking about different stuff. I before I go, I want to tell you, I absolutely admire the way you have traveled. I think it's a absolute
uh, admiration you know I have for you for doing the things you've done. वो तो छोटी मोटी चीज़ें हर कोई कर लेता है, ट्रैवल में क्या है, टिकट नहीं कराई नहीं चले गए। मनीष, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब देर आर मेनी थिंग्स जो तुम ट्रैवल करते हो, हाउ यू अप्रोच सो मेनी थिंग्स, इट इज़ वंडरफुल एंड देयर इज अ लॉट टू बी लर्न फ्रॉम यू एज नहीं, ट्रैवलिंग करके आई लर्नड अ लॉट, बेसिकली टॉकिंग टू पीपल, Yeah. उनके You've घरों become में very जाना, open, ना? या घरों पे जाना, उनका दुख दर्द समझना। मतलब मैं ऐसी गरीब गरीब कंट्रीज़ भी गया हूँ, जैसे पेरू हो गया, ग्वाटेमाला हो गया, मैंने जगह देखी है। मैंने कहा यही सब तो इंडिया जैसे लग रहा है, क्योंकि इंडिया में भी गाँव ऐसे दिखते हैं। हाँ. तो इंडिया और यहाँ पे कुछ अंतर ही नहीं है। मतलब और इंडिया का नाम एक्चुअली बहुत है बाहर। इफ़ यू गो टू साउथ इंडिया, एवरीवन नोज अबाउट इंडिया, एवरीवन नोज दैट इन अ गुड सेंस Yeah, कि I know. इंडिया हैज़ द yoga came from India, Yeah. strongest army, doctors, engineers come from there. Everyone knows that. Nobody can harm India. ये हो सकता है, कल्चर अपना बहुत सही है। Yeah. तो हम अपने आप को ना ब्राउन्स, मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा इंफीरियर कंसिडर करते हैं वाइट स्किन के उसमें। बट अगर हम अपने आप को अगर ये सोचें कि वी आर द लैंड ऑफ चाणक्याज, अशोकाज, ये जो बहुत सारे एम्परर्स आए थे, शिवाजी महाराज, ये सब, तो वी हैव लॉट ऑफ लाइक इंटेलिजेंस एंड मतलब हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ये जो हमारे यहाँ बहुत एग्जांपल्स हैं बेसिकली, right. और हम अपने को ऐसे ही वो करते थे। और ये अंग्रेज जो आए थे, इन्होंने हमारी हिस्ट्री डिस्ट्रॉय कर दी, ये मुगल्स ने कर दे दी। असाइंड एन एंटिटी टू अस कि हम जो हैं वो सांप पालने वाले, हाँ। हाथी और चलाने जब इनको वाले। इसरो की न्यूज़ मिलती है तो फिर Right. कहते हैं कि भाई इंडिया को इतना डेट है, पहले वो चुकाएं, फिर इतना पैसे क्यों लगा रहे हैं ये सब। तो उनके पास डेट नहीं है, वो भी तो ये सब इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो भी है, इट्स ऑल पॉलिटिक्स, नॉट गोइंग इनटू दैट, बट प्राउड टू बी इंडियन, प्राउड टू बी लाइक पार्ट ऑफ दैट लैंड। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम ग्रेटफुल टू यू नो बी बोर्न देयर एंड टू हैव लर्नड। या लोग ऐसे कहते हैं कि बेसिकली दे टेक मल्टीपल बर्थ्स, राइट? तो इट्स प्रिविलेज टू बॉर्न इन इंडिया स्पेशली। और उसमें भी से भी कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि सर्टन लैंड्स, अगर वृंदावन में आप जन्म हो गए, या फिर कहीं आप तीर्थ स्थान में जैसे अयोध्या में हो गए या ऋषिकेश में हो गए, इट्स अगेन अ प्रिविलेज, राइट? सो वृंदावन में अगर हो गए तो बेसिकली यू गो इन अ डिफरेंट पाथ, राइट? Basically your past karma decides on all of that, right? So yeah, that is true, but at least getting born in that land is also a big thing, and then उसके ऊपर आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है लाइफ में। That is true, but yeah, बातें तो कभी ख़त्म नहीं होंगी, but it is always nice to catch up with all different aspects. But thank you so much to be part in the mindfulness program. We'll talk to you soon again, and we wish you luck and all the best. Thank you. Thank you so much.